Hello everyone. International Institute of Goat Management welcomes you to share experiences and deliberate on livestock trading in post-COVID era, experiences of building alternative market through Pashu Bazaar. Webinar focus will be on goat livestock business potential, existing issues with informal livestock market, and online market-based livestock trading model. We are fortunate to have a diverse panel for a stimulating session. Among them is Dr. Hema Yadav, Director, National Institute of Agriculture Marketing. Ma'am has had extensive experience across marketing and academics associated with agribusiness. She has been instrumental in nurturing NIAM's flagship 2-year PG diploma program to a state of excellence. Also joining us is Mr. Ramesh Raval, former Executive Vice President, BIF Development Research Foundation. Sir has had 4 decades of experience across livelihood promotion by means of agriculture, animal husbandry, and horticulture. He has been instrumental in program policy formulation, last mile implementation, and partnership generation at a national scale. Also joining us is Mr. Sanjeev Kumar, founder advisor, The Goat Trust. Sir is an Ashoka Fellow and has substantial experience with development sector across grassroots implementation, academics, and policy advocacy. For the past decade, he has been promoting small livestock-based livelihoods as a means towards the idea of development. Among audience, we are fortunate to have participants from civil society organizations, CSR, and NGOs. We are also fortunate to have individuals with extensive experience on livestock trade and market-oriented approach for rural development. I would now brief on the planned proceedings. We will start with a brief presentation. Presentation will be followed by community experience sharing. Post this, panelists will share their views on the topic. And post an inter-panelist discussion, we will open the house for questions from the audience. I would now request Mr. Vinay Gautam to start with the presentation. Over to you, sir. Thank you, Rudraj. The presentation is visible. Yes. थैंक यू रुद्राज। अब हम आज के वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक है चैलेंजेस इन लाइव स्टॉक ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग इन पोस्ट कोविड एरिया और पशु बाजार के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम ये हमारे 20th लाइव स्टॉक सेंसस के डेटा हैं। अगर हम गोट और शिप के पॉपुलेशन को देखें तो हम यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है। गोट में लगभग 10.10 मिलियन की ग्रोथ है और शिप में 9.19 मिलियन की ग्रोथ है। हमारे अगर बिजनेस की बात करें तो ये जो गोट की ट्रेडिंग, गोट ट्रेड के जो केस है, इंडिया में 30,000 करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये पूरी तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस है और ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पे और कैश बेस्ड बिजनेस ही अपॉर्चुनिटी, कैश बेस्ड बिजनेस में ये ऑपरेट होता है। कैश बेस्ड बिजनेस में ऑपरेट होता है और इसका 90% हिस्सा किसानों की आय में जाता है। ये हमारी पशु बाजार की जो वर्किंग एरिया है, जो इसका हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश में है और इसका रीजनल ऑफिस महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में है। और बाकी जो हमारे सेंटर हैं वहाँ पे लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर जो रजिस्टर्ड हैं, जो पशु बाजार को अपने गोट को प्रोवाइड कराते हैं। गोट पशु बाजार के माध्यम से ये इनको बेचते हैं। अगर हम करंट मार्केट स्टेटस को देखें, जो गोट की जो मार्केट स्टेटस है, हमको कुछ चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। एक तो इस मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बिल्कुल ही संभव नहीं है। रेनी सीजन में बरसात पानी का भरा हो जाने के कारण पशुओं में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे हमारे सप्लायरों को काफ़ी दिक्कत होती है, हमारे परचेजरों को काफ़ी दिक्कत होती है। वुमेन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लो हो जाता है इसमें। और साथ ही साथ अगर इसमें देखें
इसमें जो पशुओं में संक्रमण के जो फैलाव है काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगर एक संक्रमित पशु इस मार्केट में आ जाए तो ये लगातार बाकी पशुओं को भी बहुत तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। अगर हमारे पशु बाजार का जो हम लोग का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, अगर इस पे जाएं तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। एक तो इसमें हम लोग वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत आसानी से लिया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इसमें लाइव स्टॉक बेस पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम से खरीद लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आसानी से लिया जाता है, जहाँ पे परचेजर और यहाँ पे सेलर आसानी से आके जिंदा वजन पे बकरियों की खरीद बिक्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मार्केट के हम प्रॉब्लम और उसके पोटेंशियल सोल्यूशन को देखे जाएं तो ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी तरह का कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है जहाँ पे हम लोग बकरियों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। और हमारा यह सिस्टम इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जिससे अब कस्टमर में एक तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और प्रोक्यूरमेंट में जो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है वो एक हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हम यहाँ से बायर और सेलर के सूचनाओं को एक ही स्तर पे इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमारे जो प्रोक्यूरमेंट के जो कॉस्ट हैं और ये इस तरह के जो डेटा है हमारे लिए एक तरह के इनकम सोर्स जनरेट करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो सेल लेवल सरप्लस गोट का डेटा पशु सखी जो हमारी विलेज स्तर पे काम करती हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के तौर पे काम करता है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो पशुपालक हैं वो अपने बकरियों की बिक्री मंडी में जाके करते हैं, वहाँ पे सभी बकरियों को एक ही तरीके से एक रेट उनको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है कि उनके ये अच्छे गोट हैं, अच्छे गोट को अच्छा दाम मिले। और इस दाम को देने के लिए हम लोगों ने पशु बाजार में ग्रेडिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम लोग लेंथ गर्थ बकरियों की ब्रीडिंग की हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग पशुओं को पशुपालकों से खरीदते हैं। इससे एक फायदा ये होता है कि पशुपालकों को उनको अच्छे बकरियों को उसको अच्छा इंसेंटिव रेट प्रोवाइड किया जा सकता है। हमारा जो वर्चुअल मार्केट सिस्टम जो पशु बाजार है वो बायर और सेलर को एक जगह पे ले आता है। इससे एक फायदा तो ये होता है कि जो 24 घंटे हम लोग इस तरह के मार्केट को अपने ग्राहक के सामने ले आ पाते हैं। और दूसरा जो इस तरह के पेंडेमिक लाइक कोविड है और जो हाई चांसेस जो वायरल डिजीज जो एक गोट से दूसरे गोट में ट्रांसफर किए होते हैं, वो वर्चुअल मार्केट से पूरी तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है। कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो हम लोग प्रोड्यूसर एंड पे लाइव बॉडी वेट से बकरियों की खरीद बिक्री को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है वो लाइव बॉडी वेट पे बकरियों की खरीद बिक्री करता है। AI से जो बच्चे पैदा होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोट हमको प्राप्त होते हैं, उन गोट को हम लोग फ्यूचर मार्केट बुकिंग पे काम करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं वो गोट को सप्लाई से पहले उस गोट का हेल्थ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ इनको इंश्योरेंस लिंकेज प्रोवाइड कराते हैं। और ऑनलाइन जो हमारे सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग पशु बाजार जो ऑनलाइन सिस्टम जिसके द्वारा हम लोग परचेजर और सेलर को एक जगह पे ले आते हैं, जिसपे इसको काफी आसानी से बकरियों को एक बिक्री में आसानी होती है। अगर इस पशु बाजार को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडर होते हैं जिनकी हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनके साथ साथ उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको पशु बाजार के माध्यम से ही उनको मार्केट मुहैया कराया जाता है। हम लोग क्लस्टर लेवल पे लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं जो एक तरह का मार्केट प्लेटफॉर्म होता है। ये मार्केट प्लेटफॉर्म जो रूरल में जो लोकल मार्केट होता है और उसके साथ साथ पशु बाजार के थ्रू जो इंडिया लेवल पे जो मार्केट होते हैं, दोनों को प्रोवाइड करते हैं लाइव स्टॉक। अगर हम पशु बाजार के वर्किंग स्टेप्स की बात करें तो हम लोग गोट के इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने प्रोक्योरमेंट सेल को हमारे
सेल पशु बाजार से जो ऑर्डर जनरेट होते हैं उस इंफॉर्मेशन के अनुसार हम लोग लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर में उस गोट को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे हम लोग 14 दिनों तक गोट को क्वारंटाइन करते हैं, जहाँ पे वेटनरी डॉक्टर के सपोर्ट से हम लोग गोट को सर्टिफाई करने के बाद इंश्योरेंस लिंकेज देते हुए गोट की सप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद फील्ड सपोर्ट, गोट की सप्लाई के बाद हम लोग 3 दिन फील्ड सपोर्ट भी अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराते हैं। अगर इस सिस्टम को अगर किसी एक फील्ड में अगर हम लोगों को अप्लाई करना हो तो हमें 3 यूनिट पे काम करना होगा। एक तो विलेज लेवल पे, जहाँ पे हम लोग हमारी पशु सखी और हमारे मार्केट फैसिलिटेटर होते हैं, और दूसरा क्लस्टर लेवल पे, जहाँ पे हम लोग प्रोक्योरमेंट टीम तैयार करते हैं, यहाँ पे गोट की प्रोक्योरमेंट की जाती है, और तीसरा हमारा जो मार्केटिंग टीम होती है, जो पशु बाजार के टीम होते हैं, जो इस प्रोक्योरमेंट को ग्राहक से डायरेक्ट यहाँ से लिंक करा देते हैं। अब तक हम लोगों ने कुल 14,000 बकरी और बकरों को सेल कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत 2014 से सिर्फ 500 बकरियों से हुई थी, और आज 2020 में हम लोग 2128 बकरियों की कुल बिक्री 2020 में कर चुके हैं। इस तरह के ऑर्डर को जनरेट करने के लिए हमारे कुछ स्ट्रेटेजी है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये गोट ऑन व्हील का कंसेप्ट है, जिसमें हम अर्बन एरिया में गोट को इस गाड़ी पे रखते हैं और उसके बाद उस एरिया में इस गाड़ी को घुमाया जाता है। ये एक तयशुदा दिन पे ज्यादातर कोशिश किया जाता है कि शुक्रवार के दिनों पे या किसी लीव छुट्टियों के दिनों पे इस तरह के प्रोग्राम को किया जाए, जिसमें कस्टमर का अटेंशन काफी तेजी से हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। इस काम को सपोर्ट देने के लिए हम लोग पोस्टर की पेस्टिंग करते हैं, जो हमारे आइडेंटिफाइड लोकेशन होते हैं। ज्यादातर हम लोग आइडेंटिफाइड हमारे जो लोकेशन होते हैं वो नियर बाई मस्जिद होती है। साथ ही साथ हम लोग पैम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इससे जो कस्टमर हमारे जनरेट होते हैं, इन कस्टमर को डायरेक्ट हम लोग पशु बाजार से लिंक कर देते हैं। लोकल लेवल पे ये हमारे एजेंट काम करते हैं। यहाँ पे ये एजेंट जो 1, 2, 4 जो इस तरह से बकरियों के जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट को यहाँ पे लेते हैं। इस रिक्वायरमेंट को फिर हमारे सेल्स टीम को ट्रांसफर करते हैं, और ये हमारे जो सेल्स टीम होते हैं ये पशु बाजार से डायरेक्ट इस गोट की सप्लाई करते हैं। रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की ये हमारी प्रक्रिया है। साथ ही साथ हमारे जो बुकिंग एजेंट को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे कैनोपी डिस्प्ले इन्हीं के आसपास लगाई जाती हैं, जो कस्टमर के अवेयरनेस करते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑर्डर जनरेट होते हैं वो हमारे बुकिंग एजेंट हैं, इनको ट्रांसफर करने के बाद हम लोग पशु बाजार पे इसको डायरेक्ट लिंक कर देते हैं। विलेज लेवल पे हम लोग लाइव बॉडी वेट वीडियो प्रोग्राम करते हैं, जिससे हम लोग किसानों को हम लोग अवेयर कराते हैं कि वो जब भी बकरी बकरों को बेचें तो वो जिंदा वजन पे ही बेचें। ये हमारे पशु जो फील्ड लेवल पे जो हमारे मार्केट फैसिलिटेटर और जो पशु सखी हैं, जो रेट डिक्लेरेशन करते हैं, रेट डिक्लेरेशन करने के बाद इसकी जो स्लिप होती है वो किसान को देते हैं, और उस स्लिप के दिए हुए रेट के अनुसार ही वो किसान अपनी बकरियों को पशु बाजार को या किसी डायरेक्ट मार्केट में जाके बेचते हैं। बल्क ऑर्डर की प्रोक्योरमेंट के ठीक पहले हम लोग ऑडियो अनाउंसमेंट करते हैं, जिससे जो हमारे जो पशुपालक होते हैं जिनको तुरंत पैसों की जरूरत होती है, इस अनाउंसमेंट के बाद वो डायरेक्ट हमारे लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर में जाके इसको सेल करते हैं। ये हमारे लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोक्योर करते हैं, जिसको हम लोग गोट को 14 दिन के लिए यहीं पे हम लोग क्वारंटाइन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में करते हैं। अब तक हम लोगों ने कुल 60 पशु बाजार को रजिस्टर्ड कर रखा है, पशु बाजार ट्रेडर को पशु बाजार में रजिस्टर्ड कर रखा है, जिनमें से 40 को हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है। ये जो हमारे ट्रेडर हैं ये बल्क ऑर्डर की सप्लाई को पूरा करते हैं। खास बात ये है कि ये हमारे जो ट्रेडर हैं एक स्पेसिफिक ब्रीड में ही काम करते हैं। अभी वर्तमान में हमारा जो पशुबाजार.com है, सिरोही, बर्बरी, जमुनापारी, बुंदेलखंडी, उस्मानाबादी और गद्दी ब्रीड में डील करते हैं। और इस तरह के जो ट्रेडर हैं इस तरह के ब्रीड के अच्छे सप्लायर हैं, जिनको हम लोग पशु बाजार के द्वारा हम लोग अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। और इन सभी काम को सपोर्ट करने के लिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो www.pashubajar.com है उनको सपोर्ट करता है। अभी करंट स्टेटस में पशु बाजार
बकरीद के बकरों की बुकिंग स्टार्ट कर चुका है, जो आप जिसपे ग्राहक ऑनलाइन जाके अपने बकरों की बुकिंग कर सकते हैं। ये ओवरऑल हमारा ये प्रोसेस है जो पशु बाजार प्रोड्यूसर एंड से लेते हुए कस्टमर एंड तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को दिखाने के लिए हम लोग समझने के लिए हम लोग वीडियो, हमारे पशु बाजार की टीम एक वीडियो आपके समक्ष रख रही है। हम आपको आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। वजन मैया जो है वजन करत ही उमा पैसा मिल जाती भाई। चिकवा से ज्यादा मिलत ही उमा, और चिकवा जो है 3000 4000 खाए तो 3000 लगाओ तो मैं कहाँ लाभ। वजन में बेचे हमारा फायदा है, और इमा हमका जिन खड़ा बेचे फायदा। जो पैसा मिला है उसको कहाँ इस्तेमाल किए? अरे कुछ शादी बारात में लगा ली है 30-35 हजार, कुछ खर्चा की है 30-35 हजार बैंक में जमा की है। मेरा नाम सैयद हमजा खालिद है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ OEFC का। मैं इंटरनेट के थ्रू पता चला था और उसके बाद ही विनय जी से बात हुई, मेरी सुल्तान से बात हुई। क्वालिटी बहुत प्रोफेशनल काम है इन लोगों का, और इसके साथ जो एक इन्होंने नया फॉर्म निकाला है गोट सेल करने का, कि प्राइस टैग नहीं है, बाकायदा वेट के साथ आपको गोट जो सेल कर रहे हैं वो एक तो हेल्थ सर्टिफाइड है वो, और दूसरा आपको एक बहुत इकोनॉमिकल रेट मिल रहे हैं। सलाह यही है मेरी कि जो भी नया बंदा हो वो पहले ट्रेनिंग ले। इनकी ट्रेनिंग होती है 3 दिन की ट्रेनिंग है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग टाइम है, तो वो लें। वो करने के बाद आपको काम की समझ आएगी किस तरह से करना है, एंड जानकारी लेके करें काम को। काम बहुत अच्छा है, नो डाउट। बेसिकली इस वक्त तो हम फार्मिंग जो अडॉप्ट करी है हमने, ये फेस्टिवल सीज़न के लिए करी है, बकरीद के लिए। बट जैसे ही बकरीद वाला सीज़न ओवर होता है और बड़ा करेंगे काम को, मिल्किंग में भी जाएंगे हम और उसमें भी जाएंगे, गोट मीट प्रोडक्शन में भी।
वेबिनार के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम महाराष्ट्र के अपने साथी धर्मेंद्र कुमार जी के पास चलेंगे, जो हमारे पशु बाजार के फील्ड के एक्सपीरियंस को आपके समक्ष साझा करेंगे। धर्मेंद्र कुमार जी। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं पिछले 5 वर्षों से महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उन्नति अभियान उम्मीद के साथ में सुधारित बकरी पालन पर कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर 4 जिलों के 13 ब्लॉक में हम लोग सुधारित बकरी पालन पे काम कर रहे हैं। इन 13 ब्लॉक में लगभग 75 सीएलएम और 804 पशुसखियाँ कार्य कर रही हैं, जिससे लगभग 53,000 बकरी पालक इसमें जुड़े हैं, जिनके पास में 2,50,000 की लगभग बकरी है। यहाँ पशुसखियाँ गांव में बकरी पालकों को सुधारित बकरी पालन के पर जागरूक करती हैं और जिंदा वजन प्रणाली से बकरी की खरीद बिक्री की जाती है। हम अभी उस्मानाबाद और यवतमाल के ऐसे 2 सेंटरों से इन बकरी का पशु बाजार के द्वारा हम लोग बकरी की खरीद बिक्री करके हम लोग जो ऑर्डर हमको बकरी पशु बाजार से जो मिलता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। अभी तक अगर हम लोग यहाँ पे जो देखें तो पशु बाजार के माध्यम से लगभग हमने 6,856 बकरियों का मूल्य निर्धारित किया है, जिंदा वजन के हिसाब से मूल्य निर्धारित किया है। इसमें से अभी तक हम लोगों ने 560 बकरियों को बेचा है, जिससे लगभग बकरी पालकों को 48,400 लगभग हम 48,38,400 रुपये लगभग किसानों को डायरेक्टली इससे बेनिफिट मिला हुआ है। थैंक यू विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। फील्ड एक्सपीरियंस को महाराष्ट्र के फील्ड एक्सपीरियंस को वीडियो के समक्ष भी हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं। अगला वीडियो हमारे महाराष्ट्र के जो किसान भाई लोग हैं वहां से हैं, उनके द्वारा है। नमस्कार, माझं नाव गुणवंत वासुदेवराव शिंदे, रायना चिमणा बागापूर, तालुका बाबुळगाव, जिल्हा यवतमाळ। मी या गावचा रहिवासी आहे। मी मागील 10 वर्षापासून बकरी पालन करीत आहे, पण मला पाहिजे तेवढे इन्कम मिळत नव्हते। आता गावामध्ये पशुसखीने काम केल्यामुळे मला बकरी पालनाला चालना मिळाली। मी आतापर्यंत पशुसखीच्या माध्यमातून पशु बाजारला 2 बिजू बोकडे विकले, त्याची किंमत सोयीने 32,000 रुपये आली। नमस्कार, मी सौ वर्षा अंकुश गेडा, मुक्काम पंचगावन, तालुका बाबुळगाव, जिल्हा यवतमाळ येथील रहिवासी आहे। मी गेल्या 5 वर्षापासून बकरी पालन करत आहे। पशुसखीच्या माध्यमातून मी पशु बाजारला आतापर्यंत 40,000च्या बकरी, शेळ्या आणि 30,000चे 2 बोकड पशु बाजारला विक्री केली। मी पशु बाजारची मनापासून खूप आभारी आहे। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथी जो त्रिपुरा से सब्यसाची चौधरी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने फील्ड के अनुभवों को हमारे समक्ष साझा करें। सब्यसाची जी। नमस्कार सर। सभी को, मेरा नाम सब्यसाची चौधरी है और त्रिपुरा में हम 4 डिस्ट्रिक्ट में अभी काम कर रहे हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पशुसखी हैं 120 और सीएलएम है 21, तो इनके साथ हम त्रिपुरा में काम कर रहे हैं। और 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है, 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे टोटल फार्मर है अभी 5,000 फार्मर के साथ हम काम कर रहे हैं। तो पशु बाजार में हम लोग अभी तक 1500 के करीब फोटो अपलोड किया है, जिसमें हमने 400 बकरी बिकवाए हैं और इसका लगभग इनकम आया है 16 लाख रुपए। तो त्रिपुरा में जो काम चल रहा है उसमें बकरी पालकों को ये फायदा हो रहा है कि जो पहले वो लोग बेचते थे, जो खरीदता था, अभी वो डायरेक्ट पशुबाजार.com से ऑनलाइन के साथ जुड़ के काम कर सकता है। और मीट बैंक का काम भी हमारे यहाँ पर चालू हो रहा है जल्द से जल्द, और मीट बैंक के तो भी हम गांव वालों को बहुत हेल्प कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब्यसाची। त्रिपुरा से ही हमारे टीम ने भी अपने
फील्ड एक्सपीरियंस को वीडियो के माध्यम से हमको भेजा है, जिसको हम लोग अब आपके समक्ष साझा करते हैं। ছাগলের ওজন আমরা সকালবেলায়, দুপুরবেলা, সন্ধ্যার সময় 3 বেলা ওজন নিই। আচ্ছা, যেমন যেমন সকালবেলা খালি পেটে ওজন নেওয়া হয়, আবার 2 ঘন্টা পরে আবার ওজন নেওয়া হয়, আবার সন্ধ্যার সময় ভরা পেটে ওজন নেওয়া হয়। আচ্ছা, তো ছাগলের ওজন যদি 10 কেজি হয়, ওটা যদি বিক্রি করি তাহলে খাবার হিসাবে, ছাগলের যে খাবার হিসাবে 1 কেজি বাদ দেওয়া হয়। ওটা আমাদের ওখানে মাটার মাংসের দাম 1000 টাকা। তো 1000 টাকা হলে এটা আস্তা যখন আমরা বিক্রি করব তখন এটাকে 500 টাকা দরে বিক্রি করতে হবে। 9 কেজি মাংস হলে 500 টাকার দরে 4500 টাকা। থ্যাংক ইউ ঋতুরাজ। Thank you, sir, for the PPT on the model of Pashu Bazaar and its relevance in times to come. Our thanks to the community facilitators to share their experiences and provide insights from the community itself through the medium of videos. I would now request the panelists to share their views, starting with Dr. Hema Yadav. Ma'am, we would request you to provide your insights on the topic. हेलो। सबसे पहले मेरा एक मिनट, मैं अपना विजुअल ऑन कर देती हूँ। सबसे पहले तो पशु बाजार की सारी जो गतिविधियां देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी प्रोग्रेस की है pashubazaar.com ने, और जिस तरीके से कम्युनिटीज में जाकर के आपने हैंड होल्डिंग की है और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट किया है बाय मार्केटिंग गोट, एंड उनको जो लाइव जो गोट मार्केटिंग और लाइव स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हैं आप, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और मुझे लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल कि इसको हम थोड़ा और स्केल अप कर सकते हैं और राज्य में फैला करके, और इसको हम थोड़ा more and more people can come on board for this livestock marketing which is online. टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, विच इज क्वाइट अ गुड टेक्नोलॉजी, जो कि आपने रूरल एरियाज के अंदर आप लेकर के गए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इन गेटिंग कम्युनिटी ऑन बोर्ड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे मिस्टर गौतम ने बताया कि कॉन्स्टेंटली आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं आप, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग, कि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक पीपल डोंट कम विद देयर प्रोड्यूस, यू सी। सो कंग्रेचुलेशंस टू पशु बाजार। मेरा पहला अनुभव है पशु बाजार का, ये सब जो आपकी गतिविधियां देखने का, और मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय कार्य है ये, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और जो भी हम कुछ कर सकते हैं उसमें करेंगे। मेरे पास जस्ट 5 मिनट्स है जितने दिए गए, तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप वहां से शेयर कर पाएंगे कि मुझे शेयर करना होगा यहाँ से? मैम आप भी शेयर कर सकते हैं शेयर स्क्रीन से। तो शेयर स्क्रीन से, सो आई एम जस्ट लुकिंग कि इसमें मुझे दिख नहीं रहा शेयर स्क्रीन। वीडियो शेयरिंग तो आ रहा है, तो जस्ट सी कैन यू हेल्प मी कि शेयर स्क्रीन कहाँ है? यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। बॉटम में मैम ग्रीन कलर का आइकन है। जस्ट आई सी यस। सो मैं कुछ सिर्फ 2-3 चीजें आपको बता देती हूँ, जो कि क्योंकि मिस्टर गौतम ने काफी कुछ बता दिया है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी आपको बेसिक स्लाइड्स दिखा के, लेकिन 2 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो सर से पहले तो मैं अपने इंस्टीट्यूशन का इंट्रोडक्शन देती हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है अलग अलग राज्यों से और प्रांतों से, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और भारत सरकार का एक ये ऑटोनॉमस संस्था है। हम जयपुर में बेस्ड हैं, और हम केवल कृषि विपणन के क्षेत्र में काम करते हैं, और कृषि विपणन के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज ऑल्सो। हालांकि हमारा लाइव स्टॉक के अंदर कम काम रहा है, लेकिन मैंने इंडिविजुअली फोकस किया हुआ है आसाम के लाइव स्टॉक मार्केटिंग एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के अंदर। हम काफी कुछ बात करते हैं वैल्यू चेन्स के ऊपर, और वैल्यू चेन्स जिसको कि हम जैसा समझते हैं
वैल्यू चेन्स की जब हम अक्सर बात करते हैं, सच तो मैं इसका शो कर देती हूँ, स्लाइड शो। या दिस इज बेटर नाउ। सो दीज आर ये लाइव स्टॉक मार्केटिंग जो भी हमने देखा, ये जो ट्रेडिंग थी उसको मैं स्किप करती हूँ क्योंकि आपने भी वीडियो देख लिया आपकी। देन स्मॉल स्केल की हम बात करते हैं, जो हमने भी वीडियो में देखे, ये सब स्मॉल स्केल लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन काफी चैलेंजेस फेस करते हैं। पहला तो है एक्सेस टू मार्केट, यानी कि बाजार वर्चुअल, जैसे कि आपने दिया हुआ है, बाजार फिजिकल। अब वैसे तो देखें तो स्टेट का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है उस पर लाइव स्टॉक इंक्लूडेड है काफी राज्यों में, और काफी राज्यों में लाइव स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। पर जहां भी इंक्लूडेड है वहां भी लाइव स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग की जो है स्थिति काफी अच्छी नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को काफी फेस करनी पड़ती है, वेमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैटल्स को रखना कहीं पर, यदि आपको थोड़ा स्टैंडिंग कैटल है तो उसको रखने की प्रॉब्लम आती है, फॉडर फीड वाटर की भी समस्या आती है। तो ओवरऑल जो है सर्विसेज, एक्सपर्टीज, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए, लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर्स के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाती हैं। और इन अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड प्रॉब्लम फॉर लिंकिंग प्रोड्यूसर्स टू मार्केट। इसलिए प्रोड्यूसर और मार्केट के लिंकेजेस अभी इसके अंदर इतने सशक्त नहीं है जितने कि हम कह सकते हैं जैसे कि एग्स में है। हालांकि एग्स इज ऑलवेज वेरी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट काइंड ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर की सुगना पोल्ट्रीज हैं, गोदरेज एग्रोवेट्स हैं, ये सारे के सारे एग्स की मार्केटिंग में आ गई। और जब आप अमूल का एग्जांपल लेते हैं तो वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग में आ गया। तो जहां पे भी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं वहां पे मार्केटिंग में एक वाइब्रेंसी आ जाती है। तो मेरा मानना है कि हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जहां पर कॉर्पोरेट लेड मार्केटिंग है, जैसे कि एग्स में, और पोल्ट्री के अंदर भी चिकन है, जैसे वेंकीज है, गोदरेज एग्रोवेट, और सुगना मैंने आपको बताया, और भी कई चीजें हैं। और जैसे आपको मिल्क कोऑपरेटिव के हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव्स हैं, अब एग्री स्टार्टअप्स आ रहे हैं विद A2 काइंड ऑफ मिल्क, तो ये सेक्टर वाइब्रेंसी आ जाती है, इसमें इनोवेशन आ जाते हैं। जहां तक लाइव स्टॉक की लाइव ट्रेडिंग की बात आती है तो उसके अंदर क्या है, अभी इतना कॉर्पोरेट इंटरफेस नहीं है, इंडिविजुअल ट्रेडर्स मोनोपोलिस्टिक है अभी ये। लेकिन जैसे आपने वर्चुअल स्टार्ट किया हुआ है तो यस, वर्चुअल इज वन गुड एरिया जहाँ पे कि आपने एक स्टैंडर्ड्स बना दिए, आपने पैरामीटर्स बनाए जिसके हिसाब से ट्रेडिंग हो सकती है। सो ये मैं स्किप करती हूँ, ये सब आपने देख लिया। 2000 मार्केट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के पास और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आते हैं, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है वो सबसे आप वाकिफ हैं कि इनमें सब में कहाँ पे प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी की भी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो APLM एक्ट आया है आपके पास, लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट, इस APLM एक्ट के अंदर काफी सारे प्रोविजंस है जिसमें कि प्राइवेट मार्केट्स अलाउ किए हुए हैं। वो एक अलग बात है कि कई स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन 15 स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो APLM एक्ट जिसके अंदर के लाइव स्टॉक पहली बार ऐड किया हुआ है, ये एक्ट जो है आपको प्रावधान देता है, प्रोविजंस देता है, ये किस प्रकार से आप मार्केट के अंदर लाइव स्टॉक को ला करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडीज भी हैं। ये लाइव स्टॉक मार्केटिंग का ये मार्केट चैनल जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर की हमने बताया कि लाइव स्टॉक फार्मर ट्रेडर एजेंट को भी बेच सकता है, फार्मर ग्रुप्स के थ्रू, प्राइवेट मार्केट्स के थ्रू बेच सकते हैं, और कैसे हम जो है होलसेल मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये मार्केटिंग के इकोसिस्टम का पार्ट है। और इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी चेक किया जाता है, एक्सपोर्टर्स तक भी जाता है। तो ये एक मार्केटिंग का पूरा इकोसिस्टम है। ये मीट प्रोडक्शन के अंदर इसमें से इतना से बताया जाता है कि जब हम गोट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स गोट आल्सो कंप्राइजेज इन द मीट प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर की 14% जो है गोट का शेयर है और 8% शीप का शेयर है। तो द पर्पस फॉर विच गोट एंड शीप आर टेकन इज आल्सो मीट प्रोड्यूस आल्सो। ये मीट कंजम्पशंस के आते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऑफ कोर्स the trading for goat and sheep meat consumption has been steady only, or perhaps little declining also, but overall if you see this trend from 1990 to 2016, it has been a steady year. It can increase owing to lot of things, और seasonality को हम देखें तो इसको increase भी कर सकते हैं। Then ये slaughter houses की situation बताइए, लेकिन मैं जो basically आपको जो चीज बताना चाहती हूँ वो ये है वैल्यू चेन एनालिसिस वाला। इसको पूरे सिस्टम को यदि हम देखें तो ये वैल्यू चेन्स के अंदर आ जाता है। वैल्यू चेन्स का मतलब होता है कि इसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि हम एंड टू एंड मार्केट के अंदर एक्टर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी हम मैपिंग करते हैं कि कौन कितना लाइव स्टॉक प्रोड्यूस खरीदता है, कितना उसका कॉस्ट एंड मार्जिन है, उसके बाद वो आगे की ट्रेडिंग कैसे करता है और कैसे वैल्यू एडिशन करता है। ये एक वैल्यू चेन का डायग्राम है, स्टैंडर्ड डायग्राम है, जिसके अंदर हमने इस पूरे सिस्टम को एग्जांपल मेरे को एक मीट वैल्यू चेन का मिला, जिसमें कि पहला स्टेप तो ये होता है कि एंड मार्केट से शुरू करते, कंजम्पशन से शुरू होता है कि व्हाट आर द कंज्यूमर
रिक्वायरमेंट जो राइट हैंड में आप देख रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 2 होता है कि बिजनेस ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं। स्टेप 3 होता है कि इसके वैल्यू चेन एक्टर्स कौन है, ट्रेडर्स, पेस्टोरलिस्ट, इसके लिए बुचर्स आ गए, सुपरमार्केट्स आ गए, ये स्टेप 3 है आपके पास। उसके बाद स्टेप 4 बिजनेस लिंकेजेस, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गए हैं कि स्पॉट मार्केट के थ्रू गए हैं कि पशु बाजार के थ्रू गए हैं, ये आपके स्टेप 4 है बिजनेस लिंकेजेस, जिसमें कि अभी पशु बाजार है। स्टेप 5 में आता है आपका कि इंस्पेक्शंस कराए कि नहीं, ड्रग्स है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, आपके पास सपोर्ट सिस्टम क्या आपने दिया हुआ है। और स्टेप 6 जिसे हम बोलते हैं वो गवर्नेंस आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। दिस इज द एग्जांपल दैट आई हैव ड्रॉन फ्रॉम इथियोपिया, अफ्रीका। इस पूरे जो मैं स्टेप 1 to 6 जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा डिफाइन करता है लाइफ स्टॉक की वैल्यू चेन का। अब इस लाइफ स्टॉक की इस पे वैल्यू चेन में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेप 1 पे है, कोई 5 पे है, कोई 6 पे है, कोई इंटीग्रेटेड वे में नहीं है। जो इंटीग्रेटेड वे में यदि आप आ जाते हैं तो पूरे लाइफ स्टॉक के मॉडल को आप मैनेज कर सकते हैं, isn't it? तो कई इंटरवेंशंस आते हैं वर्ल्ड बैंक के, आईफेड के, जो कि पूरी लाइफ स्टॉक की वैल्यू चेन को मैपिंग करके और एक एक चीज को इंटरवीन करके इस लाइफ स्टॉक के अंदर वाइब्रेंसी लेकर के आते हैं। ये मेरा मानना था। सो फॉर एग्जाम्पल इफ पशु बाजार इज एट स्टेप 4, देन पशु बाजार नीड्स टू थिंक अबाउट द स्टेप 5 ऑल्सो कि आप सपोर्ट सर्विसेज दे पाते हैं कि नहीं, एंड अ बेटर गवर्नेंस स्टेप 6। तो आपको एक स्टेप आगे पढ़ना पड़ेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, टेक्नोलॉजी, मैन पावर सब चाहिए। उन सब की मैपिंग करते हुए यू कैन थिंक एंड ड्रॉ एन एक्शन प्लान कि आने वाले टाइम में आपको यदि स्टेप 5 पे पहुंचना है तो क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको। क्यों अब ये होना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये आप 1 2 3 4 ये स्टेजेस हैं जिसके अंदर कि आपको इंटरवीन कर करके आप पहुंच सकते हैं। दीज आर दी पाथवेज जिसमें कि लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी और कमर्शलाइजेशन आप इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी का, सर्विस प्रोवाइडर्स का, गवर्नमेंट का, कि कैसे आप स्टेप्स के अंदर आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो स्टेप 1 ये सबसिस्टेंस फार्मर्स से लेके इम्प्रूव प्राइमरी प्रोसेसर्स आ गए। नंबर 3 के अंदर ऑपरेशनल प्रोड्यूसर कंपनीज बन जाती हैं और 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स और कोऑपरेटिव्स बन जाते हैं। सो आपको सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा। अभी आप कम्युनिटी लेवल पे यदि स्टेप 1 पे हैं तो आपको उनको प्राइमरी प्रोसेसर्स पे और आपको कोऑपरेटिव्स बनाने पड़ेंगे। कोऑपरेटिव से लेकर के इनको आप यू कैन मेक अ कंपनी आउट ऑफ इट। ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। मैंने बॉक्सेस भी दे रखे हैं आपको। लास्ट आई विल ये these are another possible governance and technologies of finance की बात की है, but I think I will skip। मैं आपको एक और नई चीज बताना चाह रही थी कि अब हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की बात करती हूँ तो एक 2 स्लाइड्स में आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। ये सोनतपुर का एक मार्केट था, रूरल मार्केट, जो कि हमको डिजाइन करना था। आसाम के अंदर लाइफ स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ द एपीएमसी के अंदर ट्रेडिंग होती है लाइफ स्टॉक की और काफी मार्केट्स में होती है। तो ये सोनितपुर का एक मार्केट था जिसके अंदर हमने डिजाइन किया। जब हमने डिजाइन किया, थोड़ा आप इनको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने क्या किया कि इसमें हमने एरियाज डिफाइन किए हुए थे सारे के सारे। और इस एरिया में जब हमने डिफाइन किया तो हमने ये बताया कि यहाँ पर ये पॉन्ड्स हैं और यहाँ पर कुछ खेत बने हुए हैं और हमने यहाँ पर कैटल मार्केट दिया आपको। यहाँ एक कैटल मार्केट दिया और कैटल मार्केट इसलिए दिया कि यहाँ से यदि कैटल एंटर करती है, राइट, तो उसको हमने सबसे पहले कैटल मार्केट यहाँ बना करके हमने उसको एक एग्जिट दिया, राइट, और इसको एक अलग पाथवे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वेजिटेबल मार्केट है, यहाँ पे ये फिश मार्केट है और यहाँ पर दूसरा ग्रेन मार्केट है। तो सबसे पहले एंट्रेंस पे आते ही हमने काउ मार्केट दे करके, राइट, काउ मार्केट दे करके और कैटल मार्केट दे करके इस पाथ से हमने एग्जिट मार्केट दिया, एग्जिट दिया। तो लाइफ स्टॉक मार्केट्स पे क्या होता है कि आपको एंट्री और एग्जिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये छोटा सा मार्केट था जिसपे कि हमने ये सारे के सारे इंटरवेंशंस करके दिए। और दूसरा हमने ये करके दिया कि मार्केट्स के अंदर जो नीचे जो सरफेस था वहां पे हमने ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कंक्रीट नहीं होना चाहिए और उसके अंदर टाइल्स नहीं होनी चाहिए, तो हमने उसके ऊपर एक मिट्टी का एक सरफेस बनाया जिसमें कि कैटल्स कैन बी सेफ। थर्ड इंपॉर्टेंट काम हमने किया, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज देयर, हमने पेड़ों को यूज करके उसके अराउंड हमने एक सीमेंट बना करके उसके अंदर फॉडर की स्पेस, वाटर की स्पेस दे करके एक पैग्स लगा करके कैटल के लिए शेड बनाया, प्लस उनके फीडिंग के लिए स्पेस बनाई। स्मॉल इंटरवेंशंस, लेकिन इसी एग्जिस्टिंग ग्राउंड के अंदर हमने थोड़ा सा एक लिविंग स्पेस कैटल्स के लिए बनाया। और एक इंटरवेंशन किया हमने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जो हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो जब ठीक करने का मौका आया तो वी डिड डू दिस डिजाइन फॉर द वर्ल्ड बैंक एंड एक सोनितपुर मार्केट, झूरिया मार्केट, कुछ मार्केट्स है जहाँ पर कि ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हुई।
So that's all from my side. The little experience that I have, जो कि मैंने आपके साथ share किया. मैं livestock expert नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे marketing experiences across the states थे वो मैंने आपके साथ share किए. Thank you. Thank you, ma'am, for your insights, for sharing the knowledge about how small livestock-based value chain is mostly small scale and lacks appropriate infrastructure at each node of value chain, and how if institutions are brought in for marketing, like we have cooperative model for Amul, and about other market players like Venky's you mentioned for meat marketing. So how they can be a pulling force as on the market end and bring vibrancy to the value chain. How then we had the opportunity to understand detailed value chain analysis. The reason why this is not developing from subsistence to a significance is because every player is at their own node on the value chain. There is an absence of an integrated value chain approach, and how we can, the way forward at each node of value chain, what is the way forward? So you provided insights on that and gave an example of a strategic geographic market infrastructure in Assam. Thank you, ma'am, for that. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I would request our panelist, Mr. Ramesh Rawal sir, to share his insights on the topic. Rituraj, video is not on, it seems. Earlier we had issue with the voice. I believe video is on and voice is also available. Ramesh sir, आपको आवाज आ रही है sir? Voice, we still have an issue with the voice. It seems. Just a minute, sir. Is any technical challenge there? Hello, Rituraj? Yes, sir. Can we help him, or should we proceed for the next and then call him again? Yes, sir. I believe I'm trying on the back end for someone to help for the audio connect. And then maybe later we can, after some time, when it's over, we can again have the take of the sir. Yeah, that will be better.
now we will move ahead. We are facing a technical glitch and we are trying to overcome it on the back now. So now I would request our panelist, Mr. Sanjeev Kumar, to share his views on the topic. Okay, I would like to discuss more of your questions, and I thank Dr. Hema and the whole team who has been deliberating on one of the most important issue when we talk about livestock, the transformation needs from production up to marketing, the whole value chain. So I would be more interested telling you the history of Pasu Bazaar. It all started around 2001, past 19 years, when we first time we sold it. That time I was working in Pradhan, and we sold first time live body weight. So we need to understand this live body weight. It's a scientific equation to be developed, because a goat can be fed, there can be given water. So how to nullify that is the first level of interventions. Perhaps Pasu Bazaar worked first 3 years. So to develop those equations. So all of you who have been listening and having a lot of questions, and of course very enthusiastic learners we have and as a partners. So I would say we need to work out on those equations, because that equation also needs contextualization. The whole Amul movement started because we have fat-based and SNF-based pricing equation. So how to develop in this livestock, especially the meat animals, is one of the critical tasks in front of us, the challenges Pasu Bazaar faced, because I lost significantly while I was trading, purchasing and selling it, just because the loss will be significant. Secondly, if you ask me the equation itself, I would focus first the equation, the whole commercial farming. The problem in commercial farming is, if I am feeding today or say in a month 20,000 rupees to my goat or kid bucks, so I need to understand how much is gain to the farmer. And that's not possible unless and until you didn't have this live body weight equation to understand how much meat has been grown, how much you have earned by investing your 30,000-40,000 rupees or 10,000 rupees a month. So commercial farming needs every month or fortnightly monitoring, not to the last minute monitoring. Loss and profit happens in the process of a business. So the two roles which Pasu Bazaar team has developed, and I invite in fact all of you, because a lot of need to be still done to develop such equation which helps our commercial goat farmers. The third thing, I think there is a huge scope of replication of Pasu Bazaar. Pasu Bazaar is a concept which looks now for more partners to work with. So we are just a sort of pilot. All things we have shared with you is a pilot, a sort of experiment, which proved it's possible. And why we say with confidence, because 13,000, 14,000 goats and bucks we sold, and this equation worked. If not worked, we would not have been here to tell you the story, because there had been huge loss. But we found the farmers are getting profit, and around 10%. The whole value chain, we are not replacing the traders. We are using many of the traders, but with the technology kind of thing, enhancing their efficiency to trade. So three things in Pasu Bazaar we say: we don't replace traders, rather upgrade traders. Change the terms of trade, not the trader itself, because there will be trader, either you and me or the Pasu Bazaar. But can we also look into how to make these equations work for them? And I would also request all of you to be partnership in this movement. This is a mission. This is not just a business. It's a social enterprise, Pasu Bazaar. And of course, there is a team who is working. But I'm also here to request today the whole country, especially in post-COVID context. Now the physical market will be very difficult. Already there were problems, but it had to be somehow getting managed. But now it will not be the same world now. The whole livestock trade is into problem. And when we say the livestock, we are talking about the marginal farmers, landless farmers, the women, the weakest in the sense of this whole hierarchical world. They have their wisdom, but then we need to link these technologies, modern technology, to the people again, to the people in fact.
And we see when we talk any traditional business, we talk about something very low level. It's not. Every traditional business goes up to, if you can upgrade it, it's the largest business. The one of the beauty of traditional business is it has seen the centuries of the things. So if you ask me the goat trading, we have many things to trade, but the goat will be more sustainable because thousands of years people had reared it, and there is a system. The whole, of course, the earth have such different type of disasters, and each of you know what the goat role play. सो मैं क्लेरियन कॉल और आप सबसे मेरा निवेदन है कि क्या हम मिल के काम कर सकते हैं, क्या इस मुद्दे को हम एक मूवमेंट की तरह देख सकते हैं। पशु बाजार एक प्रयोग है, प्रयोग की सफलता एक हद तक हुई है और हम आज टीम को भी और वो सारे साथियों का, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो हमने पिछले 10-15 सालों में काम किया, मैं पशु बाजार की तरफ से, इस कंसेप्ट की तरफ से, जैसा मैंने कहा कि 2001 से हम लोग इस कंसेप्ट के साथ जी रहे हैं एंड परहैप्स 19 साल हमें लगा यहाँ तक आने में, क्योंकि एक वर्ड जो आप कहते हो उसको जमीन पे उतारने में बहुत मेहनत लगती है। डॉक्टर हेमा जी कह रही थी कि चैलेंजेज हैं, ह्यूज चैलेंजेज हैं इस तरह के सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में। सो वंस अगेन पशु बाजार इज जस्ट ए एक्सपेरिमेंट, जस्ट ए सॉर्ट ऑफ पायलट वी डिड, और मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा कि इस वेबिनार के बाद इस चर्चा को बढ़ाएं। जो एक सवाल था कि सिर्फ बकरी में नहीं, बकरी एक उदाहरण था हमारे लिए, ये चीजें और भी कई सेक्टर में हो सकता है और गोट पोल्ट्री से हम सीख सकते हैं, अमूल डेयरी से सीख सकते हैं। समवेयर गोट एंड शीप में हमारी जो नॉलेज है उसको लगाने की जरूरत है और उसमें शायद पशु बाजार एक रोल प्ले कर रहा है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you, sir, for shedding your insights on what energies went into developing this model of Pashu Bazaar for past 18 years, and now we are poised to replicate it. So the need of the hour is to replicate, and replication is through upgrading the existing system, as you mentioned, not replacing the trader, but upgrading him and sensitizing him with the technology. Also, you mentioned about this being a traditional business. So it has been tested by time, centuries, and beyond thousands of years. So this is a model which is tested by time and requires upgradation. And this upgradation has been in a way provided by Pashu Bazaar, and now it requires to be replicated. So thank you for your insights, sir. I believe the audio glitch has been resolved. मैं रमेश राहुल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर to share his views. I believe sir voice is still not audible. Can we check by call to him? Okay, let us have open 2 questions in the meantime, and yes, if he's able to join, we'll start it. Okay, sir. So we are still trying on the back end. I believe the issue persists. We would be now moving on towards the questions from the audience. First is that since Dr. Hema ma'am also mentioned that Pashu Bazaar is right now on the step of market linkage and providing the transparency on pricing.
So there is a question, are we following an integrated value chain approach? Are we there on each node of the value chain? So I would now request Sanjeev sir to provide his insights about the presence of Pashu Bazaar towards backward linkage as well. Thank you for this question. In fact, the whole model emerges from the back end to the front end. We didn't started Pashu Bazaar first. We worked with, in fact, this was a solution for the problem we found in the field. Like if you see the whole production, starting from the production Pashu Sakhi model, and many of here, those who are into this webinar knows this model about Pashu Sakhi. So building their technology, services, production technology, then feed, I convert to Hindi, उनका खाना पीना, उनका बकरी का रखने का, उनका स्वास्थ्य का, पहले हमने ये सब पे काम किया। तो जो ये 2-3 बकरी वाले हैं, जब इनका कॉन्फिडेंस इस बिजनेस पे आएगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये 2-3 बकरी से जब वो 7-8-10 बकरी तक आ जाते हैं, तो 30-40% फार्मर आते हैं, नॉट एवरीबडी। तो हमने उनके साथ फिर देखा कि अब मार्केटेबल सरप्लस सिग्निफिकेंट है। और अगर आप कलेक्टिव मार्केटिंग ना देखें तो गोट में इसलिए पशु बाजार आया, जो कलेक्टिव उनकी मार्केटिंग थी और जो उनके प्रॉब्लम्स हो रहे थे, प्राइस, और सबसे बड़ा जो मैं जेंडर प्रॉब्लम कहूँगा कि महिला और पुरुष के बीच ये कि तुमने सस्ता बेच दिया, तुमने महंगा बेचा। सो वी स्टार्टेड बैक इन, वहाँ से हम लोग फिर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लेके आए। जब हमने पशु बाजार शुरू किया तो हमें लगा कि इसमें हमें कहीं न कहीं एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा साइट है। एंड देन हम अभी आईटी की बात कर रहे हैं। शायद जो मैडम ने 5th and 6th कहा, पॉलिसी एडवोकेसी, वो शायद अभी भी कमजोर है। और आई थिंक ये शायद बिगिनिंग है। ये पॉलिसी एडवोकेसी जब तक हम सब नहीं चाहेंगे, जब तक मास प्रॉब्लम को रियलाइज नहीं करेगा, तब तक हम पॉलिसी एडवोकेसी नहीं कर सकते। ये सिंगल एंटिटी का काम नहीं है, और हमें मॉडल्स पहले दिखाने पड़ेंगे, तभी पॉलिसी एडवोकेसी हो सकती है। तो जो मैडम ने 6 स्टेज कहे, उसमें से 4-4.5 पे हम लोग हैं, और उसके आगे अब हमें और बढ़ना है, इसीलिए आज का वेबिनार है। Because I think sir is back, so we can start there. सर आवाज आ रही है? सर की आवाज तो नहीं आ रही है मुझे। हाँ, आवाज is missing sir. Though audio is connected, but still I believe के transmission में issue है, because audio and video is showing connected. I believe we'll record sir's view and we'll provide the participants in the video, and we'll also share it on YouTube and WhatsApp to be viewed later on. Okay. So any questions? Yes, sir. So we'll now move ahead with the audience questions, and the house is now open. So one prominent question that we are receiving is that if we start in this goat farming in a new area, so what are the breeds? What breed should we choose? What is the production technology, and what support can Pashu Bazaar give us when we have a herd ready to sell? So I would request Vinay Gautam sir to provide his insights on this question. Okay. मैं भी जब कस्टमर से जब फेस टू फेस इंटरेक्ट करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सी ब्रीड से शुरुआत करें। हेलो, आवाज थोड़ा तेज आ रहा है, इको कर रहा है, थोड़ा आवाज कम कर दीजिए। यस, 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड। पशु बाजार के द्वारा हम डेली अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोगों से पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं अपने ग्रामीण इलाके में ज़मीन है उनका यूज़ करते हुए कौन सी ब्रीड से शुरुआत करें। तो मेरा सबसे पहला सजेशन रहेगा कि एक तो इनका ये फर्स्ट टाइम होता है, तो फर्स्ट टाइम जितने भी फर्स्ट मूवर जो रहते हैं, जो अभी पहली बार बकरी पालन की कमर्शियल लेवल पर स्टार्ट करते हैं, तो हमको ये लोकली लेवल पे जो ब्रीड अवेलेबल होते हैं, हम लोग को उन्हीं ब्रीड से ही शुरुआत करना होती है।
ज्यादातर लोग का ये कहना होता है कि भाई मैं क्यों नहीं बाहर का ब्रीड ले आता हूँ। तो बाहर का ब्रीड ले आने में समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम जब भी बाहर की ब्रीड एक जगह से दूसरे जगह पे ले आते हैं तो काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल चेंज हो जाते हैं। इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो हम वेटनरी जो सपोर्ट होते हैं उन सपोर्ट में हम लोगों ये भी बताते हैं कि चाहे गोट किसी भी ब्रीड का शुरू करें, हमको शुरुआत से 21 से 25 दिनों तक के लिए हमको गोट में इंडक्शन प्रोटोकॉल करना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो जो फर्स्ट टाइम जो शुरू करने वाले हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम बकरी पालन के व्यवसाय को अगर ये कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो लोकली ब्रीड करना हो, और ये चाहे लोकल ब्रीड हो या चाहे हम बाहर से ब्रीड लाएं, इंडक्शन प्रोटोकॉल को शुरू करना बहुत जरूरत होता है। एज ए टेक्निकल एजेंसी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पहले जो हमारे लोकल एरिया में ब्रीड अवेलेबल हैं उनको हम लोग लाएं और उन्हीं से ही हम गोट फार्मिंग स्टार्ट करें। हेलो, थैंक यू सर। देयर इज अनदर पॉइंट वेयरन कि पशु सखी जो है हमारी वो कैसे एग्रीगेशन कर सकती हैं गांव के स्तर पे और कैसे पशु बाजार से जुड़ सकती हैं, उस पे एक सवाल है, तो उस पे आपकी सर इंसाइट्स हैं। इसमें देखिए 2 तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। जब हम किसी गांव पे काम करना स्टार्ट कर दे तो पहले तो हम उसी गांव को चयनित करें जहां पे बकरियों की संख्या का अच्छे स्तर पे है, जहां पे कम से कम 50 से 60 बकरी पालक हों और उनके ऊपर हमें 200 से 300 बकरियों की संख्या उपलब्ध हो। इससे हमें क्या होता है कि जो हमारे जो पशु सखी होती हैं उनकी ये भूमिका हो जाती है कि उस गांव के स्तर पे उन बकरियों को डेटा कलेक्ट करने में काफी डेटा कलेक्ट करती हैं। तो शुरुआती तौर पे जब हम लोग मार्केटिंग के प्रोसेस में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले जो पशु सखी होती हैं वो पशुओं का एक बार जिंदा वजन पे, एक बार भरे पेट वजन करते हैं, एक बार खाली पेट वजन करते हैं, उनके बीच का डिफरेंशिएशन का पता लगाते हैं कि जब बकरियों का पेट भरा है और जब बकरियों का पेट खाली है तो उन दोनों के बीच में कितना गैप है, और इस गैप के अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट में जो अवेलेबल ट्रेडर हैं वो क्या रेट प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ पे फार्मर की जो मंडी है उस मंडी पे क्या लाइव रेट मिल रहा है, सप्लायर्स की मंडी है उन मंडियों में क्या रेट मिल रहा है, और मटन का क्या रेट है। इन तीनों को हम लोग जोड़ते हुए हम लोग एक इक्वेशन पे पहुंचते हैं, और इन इक्वेशन के बाद ये जो पशु सखी जो इक्वेशन डेवलप करने में हमारी मदद करती हैं, उनके बाद ये उस पे प्राइस डिक्लेरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं। तो ये जो हमारा प्राइस डिक्लेरेशन का प्रोसेस होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग प्राइस डिक्लेरेशन विलेज लेवल पे करते हैं तो कम्युनिटी को ये अवेयरनेस दी जाती है कि आप इससे नीचे रेट पे कभी ना बेचें, और इससे अच्छा रेट अगर आपको लोकली ये अवेलेबल होता है तो ये आप उनको अच्छा रेट दिलाएं। इसी चीजों में हमारी पशु सखी, लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर और पशु बाजार इस कामों को डील करता है। Thank you, sir, for your insights on the how Pashu Sakhi model can be evolved. We have tried alternative measure to receive audio from Ramesh Rawal, sir. First, we will try if the existing system is working. Sir, आप अपने सिस्टम से आपको सुनाई दे रहा है अभी कुछ? सर सिस्टम में नहीं दे रहा है, हम ऑडियो कॉल के थ्रू ही कर पाएंगे सर। नहीं, मैं ऑडियो कॉल टेलीफोन पे। हाँ जी, आप उस पर टेलीफोन पे बात करिए और स्क्रीन से आप प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। ओके ओके जी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं अपना जो भी ये अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, ना कि बहुत बड़ी इसके ऊपर कोई स्टडीज का होगा, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर और जो कुछ हम लिटरेचर में पढ़ते हैं या बातों से सुनते हैं तो उसके ऊपर ये मेरा बेस रहेगा इसका। तो एक मिनट अभी
और दूसरा मैं गोट ट्रस्ट को बहुत थैंक्स और कम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक निग्लेक्टेड एनिमल को और निग्लेक्टेड सब्जेक्ट को मार्केटिंग को बड़े उसमें अच्छे कमिटमेंट के साथ किया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था। ये और जो मार्केटिंग का इन्होंने नए स्टेप लिए हैं, मेरे ख्याल में एक नई सोच के साथ इसको करना बहुत आवश्यक था। और मेरे ख्याल में जैसे ही लर्निंग आएंगी और इसको अंदर इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी। और पहले मैडम हेमा ने और संजीव जी ने और विनय ने काफी कुछ बता दी, तो इससे मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह में ना जाके मैं कुछ एक खास इश्यूज के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहूंगा। जैसे ये तो सबको मालूम है कि कितने लाइवस्टॉक सेक्टर अपने इकोनॉमिक और अपने पॉवर्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कुछ कहना ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक इसमें मैं एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगा कि लाइवस्टॉक एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही क्लाइमेट रेजिलियंट है। जब क्रॉप जरूर फेल हो जाएंगी, लेकिन लाइवस्टॉक से फिर भी किसान अपने आप को बचा सकता है, अपने परिवार की रख रखाव कर सकता है और रिसोर्सेज के हिसाब से उसको तो ज्यादा या कम कर सकता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइवस्टॉक फार्मिंग का। और खासकर जो किसान है जो गोट और शीप वगैरह रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि उनकी ज्यादा इनकम अगर उनका टोटल इनकम हाउस होल्ड की गिनी जाए तो मेरे ख्याल में 60 से 70% इनकम उसकी गोट फार्मर्स की गोट से आती है या शीप से आती है। और अगर हम डेयरी का लें, जो आम डेयरी के किसान है, उनसे 20 या 30% ही वो इनकम डेयरी से कमाते हैं। तो ये अर्थ है हमारा कि गोट इतना इंपॉर्टेंट एनिमल है, खासकर जो पोर आदमी इसको रखते हैं और उसकी इनकम को बहुत बड़ी सपोर्ट देते हैं। आज का अगर हम देखें कि जो एनिमल की सेल का मेथड है, शुरू में जो बताया वो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है सेल का, उसमें किस तरह किसान का चीटिंग होती है और किसान को पूरा भाव नहीं मिल पाता है। ये मेरे ख्याल में जो पशु बाजार के थ्रू इन्होंने काम करने का कोशिश किया, मैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसमें काफी कुछ किसानों किया गया है। अभी तक जो हमारे 3 तरह के एनिमल हैं, अगर हम यूटिलिटी के हिसाब से देखें तो उसमें एक तो हमारे जैसे गांव बफेलो, फिर ड्राफ्ट एनिमल जो किसान परचेज करता है या बेचता है, जिसमें बुलक्स है, मेल बफेलो है, कैमल एक्सेट्रा है। और मीट का जो तीसरा कैटेगरी है शीप, गोट और पिग। तो 3 तरह के ट्रेडिंग, 3 तरह के एनिमल की ट्रेडिंग होती है। और उसके भी तकरीबन अभी तक तो 3 से अब चौथा और 5वां 2 और बड़े एवेन्यूज खुलते जा रहे हैं। लेकिन मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं तो मिल्क एनिमल जो पर्सन टू पर्सन एक से दूसरे से एक परचेज करके ही ज्यादा खरीदते हैं, या फिर ट्रेडर हैं जो बीच में उनको तो दूसरे लोगों को सप्लाई करते हैं। फेयर एंड मार्केट में इन एनिमल्स की कम सेल होती है, लेकिन मेजर सेल ट्रेडर और पर्सन टू पर्सन की सेल में ही आता है। अगर हम ड्राफ्ट एनिमल देखें, इनका मेजर जो है पर्सन टू पर्सन होता है या फिर फेयर एंड मार्केट में परचेज किए जाते हैं। तो ये एक काफी बड़ा जो प्लेस ऑफ परचेज या सेल है वो एक डिफरेंट है। तो डिफरेंट तरह के कस्टमर आते हैं और डिफरेंट तरह की निगोशिएशन होती हैं, क्योंकि अब फेयर एंड मार्केट में जाते हो आप एक काफी बड़ी ऑप्शंस के साथ आते हो। आपको कई तरह के बुलक्स दिखाई देंगे या कई तरह के दूसरे एनिमल्स दिखाई देंगे, आप उसमें से परचेज कर सकते हो। पर्सन टू पर्सन में एक एनिमल या 2-3 आदमियों के एनिमल देखोगे उससे ही परचेज करो, तो ऑप्शंस आर लिमिटेड। तो जो मीट वाले हैं वो ज्यादा जो सेल होते हैं, या तो ट्रेडर आते हैं बीच में या फेयर और मार्केट में जाके बिकते हैं। जो अभी विनय भी बता रहे थे, अगर आप देखें उन्होंने ट्रेडर्स को ही बीच में स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा स्टेप है, किसी को डिस्प्लेस नहीं किया उन्होंने, मतलब ट्रेडर्स को ही कैपेसिटी बिल्ड किया और ट्रेडर को ही लेके गए हैं और किसानों को करने की कोशिश की है और उनको फैसिलिटेट किया है। ये मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और ट्रेडर का रोल अभी भी बना रहेगा। और फेयर और मार्केट में भी इसी तरह जो है जो मार्केट प्लेस पे ही जाके ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये इसमें भी फेयरनेस ज्यादा आ जाती है। तो ये 3 तरह के एनिमल का यूटिलिटी के हिसाब से और 3 तरह की मार्केट आज की अवस्था में है। लेकिन कोविड एरिया को देखते हुए अभी काफी कुछ चेंज आने वाला है, या पीछे जो थोड़े बहुत चेंज हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी जो डिजिटल मार्केट या पशु हाट है, ये कैटल फेयर और मार्केट को थोड़ा रिप्लेस करने वाले हैं।
और ट्रेडर को रिप्लेस करने वाले वापस कलेक्टिव और एफपीओ, जो हेमा जी ने भी बात की थी, किस तरह कलेक्टिव या किसानों की ऑर्गेनाइजेशन बना के उनको प्राइस रियलाइजेशन अच्छा करवा सकते हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम कर सकते हैं। और इसकी जब ये पशु हाट पे मैं आगे भी बात करूंगा तो उस टाइम आपको और बताऊंगा मैं। जो अभी किसानों में बहुत बड़ी सोच का भी चेंज आया है, ये भी हमें एक समझने की जरूरत है। पहले जो किसानों में सस्टेनेंस का होता था, जितना पैसा मिल गया उतने में संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि कास्ट ऑफ फार्मिंग उनकी काफी लिमिटेड रहती थी, बाहरी ग्रेज करके उनको सेल करते थे, तो उनको लगता था कि हमारे तो घर की लेबर ही है। लेकिन आज किसान बहुत कॉन्शियस हो गया है कास्ट का भी, और उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप बेस करना चाहता है, कैसे कास्ट कम करूं, कैसे प्राइस ज्यादा लाऊं, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं। ये इश्यू भी आजकल किसानों के बीच में आ गए हैं। और जो विनय बता रहे थे, मेरे ख्याल में इनका जो बैकअप का प्रोग्राम है, किस तरह किसानों की मॉडलिटी कम कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इस फार्मिंग के ऊपर बदलाव लाने वाला है। और आज सिर्फ ये नहीं मैंने एक वोट बेची, आज ये कि मैंने कितनी इनकम कमाई है, मोनेटाइजेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। किसानों की सोच का बदलाव है, तो हमेशा उनके ऊपर रहते रहते हैं। डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया है, उससे काफी इन चीजों के ऊपर भी किसानों को जानकारी मिल रही है। मोर अवेयर आने वाले हैं, थोड़ी बात करना हेलो, विकास वॉइस नहीं है। विकास हेलो, विनय सर वी आर कनेक्टिंग अगेन, एक ऑडियो में इशू।
Okay, are you getting right? Yes sir, just I believe one more minute. Okay. जी सर, वो दूसरे नंबर से अब मैंने ट्राई किया। जी सर, हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है सर, मैंने अभी दूसरे नंबर से ट्राई किया है। जी जी, अब शायद साफ आएगी सर। जी सर, ओके सर, स्टार्ट करिए सर। जी सर, जी सर, सुनाई दे रहा है सर। सुनाई दे रहा है? ये चेंजिंग सिनेरियो लर्निंग फ्रॉम पोस्ट कोविड। जी सर, सुनाई दे रहा है सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा जी, अभी ऐसा था कि जैसे ही कोविड के जो एक्सपीरियंस रहे हैं अपने, उसमें काफी कुछ चेंजेस आए हैं मार्केटिंग में भी, जो मार्केटिंग में और लोगों की सोच में और एक उनको अलग पॉसिबिलिटीज दिखाई दी हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है मार्केटिंग के लिए, जो कुछ हद तक मैं सोचता हूँ कि विनय ने जो शुरू में बताया उसमें कुछ शुरुआत हुई है, लेकिन इसमें काफी कुछ आगे इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है उसमें 3D पिक्चर के साथ मार्केट विजुअल मार्केट क्रिएट करनी पड़े और उसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा ये था कि जो किसानों की एफपीओज और कलेक्टिवाइजेशन जो करनी है कम्युनिटी बेस्ड, और इसके साथ में एक अगर आप देखें बाकी हर तरह की एफपीओज की बात होती है, चाहे नबार्ड हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट हो, एग्री कमोडिटीज के लिए, मिल्क के लिए तो सब एफपीओज की बात होती है, लेकिन कोई भी शीप एंड गोट की एफपीओज की बात नहीं करता। मेरे ख्याल में इसको प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। जो ट्रेडर है या फिर जिस हिसाब से एनजीओ का बैकअप लगता है, उनको एक बहुत बड़ा नीचे ग्राउंड लेवल पे संस्थाएं काम करने वाली मिल सकती हैं और इसको और अच्छी तरह किया जा सकेगा और उनकी इनकम और बढ़ सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि एक एफपीओ का कंसेप्ट शीप एंड गोट एनिमल्स के लिए भी करना चाहिए। दूसरा क्या, आजकल किसान को और कस्टमर को भी और रियरर को भी मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन किस तरह का मार्केट में मिलता है, किस तरह की डिलीवरी सिस्टम क्या है, कितनी कास्ट है, बीच में काफी एंटरप्रेन्योर्स भी आ गए हैं जो डिलीवरी करते हैं। तो इस तरह का कुछ एक बेस बनाना पड़ेगा और इनकी एक स्टेक होल्डर जो बन जाए तो उनके साथ में मीटिंग करके किस तरह हम होल चेन ऑफ सप्लाई एंड डिलीवरी वी कैन वर्क इट आउट। ये एक आपको जो डिजिटल मार्केट में इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, जैसे अभी जोमेटो है या और कुछ एक कंपनी आ गया डिलीवरी वाली, इन ऐसी ही कोई नई कंपनीज भी, एंटरप्रेन्योर्स भी इस तरह के तैयार हो सकते हैं। तो इनके ऊपर भी मेरे ख्याल में हमें स्कोप काम करने का स्कोप है। और एक अगर आप देखें, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है डेयरी एंटरप्रेन्योर की। मेरे ख्याल में इसी तरह के कंसेप्ट पे अभी गोट एंटरप्रेन्योर या शीप, इस तरह के लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ सकते हैं, जिसमें हमें एक अच्छी मार्केट, एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर काम करने को मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि जो इनको एनिमल्स चाहिए अपने फार्म स्टार्ट करने के लिए, उनको डिजिटल मार्केट से परचेज करना बड़ा आसान हो जाएगा और उनके वो कुछ अपने अगर सप्लाई चेन बढ़ाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम है, इस तरह के जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसको भी एनकैश करना पड़ेगा। इसमें मैं एक पर्टिकुलरली जो विनय ने अभी मार्केट वाली बात की थी, इस तरह कम्युनिटी मार्केट कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि इसमें अगर कुछ एंटरप्रेन्योर बीच में आ जाए, ट्रेडर्स शुड बिकम एंटरप्रेन्योर इन दिस ज्यादा थोड़ा विद बेटर बैकग्राउंड and who can really take this scale of the operation to higher side. मेरा थोड़ा मानना इस बात में है कि जो अभी फैसिलिटेशन 20-21 साल हमने किया है, उसको किस तरह एनकैश करते हुए एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में लेके आए, ताकि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन सम ऑफ द cost subsidization from various programs of CSR funding, can entrepreneurs enter into it and make it a sustainable program. इसके ऊपर अगर आप फैसिलिटेशन करें तो मेरे ख्याल में एक नई डायरेक्शन इसको मिल सकती है। और अगर आप देखें, आजकल ट्रेसेबिलिटी का बहुत इश्यू बनता है कि मेरे को पता चलना चाहिए कि जो एनिमल आ रहा है कौन सी ब्रीड का है, किस किसान से आ रहा है, जियोग्राफिकल मैपिंग और कोई डिजीज स्टेटस क्या है। इस तरह की जो ट्रेसेबिलिटी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, इसके भी आगे कुछ सालों में इसके ऊपर भी आने वाला है। मेरे ख्याल में
जो अभी आपने एक क्वारंटाइन का सिस्टम बनाया है, 14 दिन रखते हैं, उसको किस तरह आप हैंडल कर सकते हैं ताकि कास्ट मिनिमाइज हो सके, क्योंकि मेंटेनिंग एनिमल ऑफ 14 डेज इज ए वेरी हाई कास्ट प्रोपोजिशन. हाउ वी कैन हैंडल दिस एस्पेक्ट सो दैट कास्ट मिनिमाइजेशन हो जाए. और जैसे मैं निच प्रोडक्ट्स की बात करूं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर मैं सोचता हूँ कि जैसे कड़कनाथ उधर का चिकन है एमपी का, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको आप हाई प्राइस पे बेच सकते हैं. दैट्स अ नीच प्रोडक्ट. सिमिलरली मैं सोचता हूँ कि ब्लैक बंगाल गोट जो है, इट हैज अ डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट अरोमा. So such kind of products will have a high premium, and how this can be encashed is another opportunity on which मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए. और जो अभी मैं बताया कि पोस्ट कोविड एरिया के क्या लर्निंग है, उस बेस पे कस्टमर आगे जानना चाहेगा ब्रीड के बारे में, जियो मैपिंग के बारे में, क्या क्या खिलाया जाता है. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं अपनी फार्मिंग के लिए, तो वो जरूर इन चीजों को जानना चाहेंगे, क्या खिला रहे हैं, क्या एनिमल का डिजीज स्टेटस है, और कौन सी ब्रीड है, प्योरिटी ऑफ ब्रीड क्या है. ये चीजें भी अभी मेरे ख्याल में हमें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, और हो सके तो इसका ब्रीड और जेनेटिक रिकॉर्ड भी इसी तरह एनिमल का मेंटेन करना पड़ेगा. तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा, मैं सोचता हूँ कि अपने किसानों के लिए. और साथ में मैं एक नया कंसेप्ट, जैसे अभी हेमा ने भी बताया और मार्केट में ये हो रहा है, सुगना और वेंकी जो पूरा कंट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं, दे गिव चिकन, दे गिव द इनपुट एंड देन दे बाय बैक. मेरे ख्याल में सम ऑफ द बिग goat meat processors or meat processors can be encouraged to get the contract farming done. But that's where facilitation can be done in a catchment area, specific breed, specific feeding, specific system of disease control and testing, vaccination can be done. I think this is another area on which I feel somewhere start can be made, and it will encourage entrepreneurs. At the same time, it will help farmers to earn more income out of it. और इसमें value addition technology and processes also customer will like to know, on which I think our team should be ready for it. Now, how to meet these needs and expectation of farmers and entrepreneurs? Like I have already mentioned, we may promote SKUs of produce and inputs and services. And at the same time, I have a strong feeling, which is unfortunately missing in India, is we don't have any association for breed-specific association who should really work on those breeds for genetic improvement, for their studying the virtues, for disease status. Those associations should be promoted and encouraged by government and the NGOs to promote these and see that we maintain purity of the breed, and farmers will, as the customer and farmer both will be benefiting from it. And particularly it may not be for this, but let me put it for goat, but this legislate and monitor jump loss production and utilization and uniform identification recording system. This is one area which is really missing in the country, and this is more required for milk breed and indigenous cows than and maybe any other breed. This is one area on which Government of India must take action. I think we are also pursuing, and we hope to get it done and get it implemented. The government has already devised a system of INAF, which is identification network for animal production and health, which is need to be really get it implemented. This is the need of the hour, I'll say, particularly for our indigenous breed. And the portal that we see in Pashu Heart, particularly for by Animal Husbandry Department, which was launched in November 2016, doesn't give the whole information. And my thinking is the whole animal information, farmers information, and good pictures of the animal should be given. And there should be a provision to have visual markers, 3D pictures of the animals, and the kisan and the location where it is there should
able to access to decide on whether this animal is suitable for him or not. This is one area on which I think Goat Trust can also look at. And similarly, I think our country has a very difficult task of what you call it, the concept of one country, one market. And particularly in this transport problems, those are faced by the animal rearers, are say that is a very, very big problem on which also I think somewhere we need to have talk to the stakeholders and the government and see that how their issues can be addressed. Because unless there is some support from the government, price realization can't be that much until we have good transport regulations of animals. Because SPCA, that Prevention of Cruelty to Animals Act comes in, and there are a lot of hassles that government faces, customer faces. And another very important reason, Madam Hema was mentioning about the Assam experience of Sonitpur market. And I think that's what I also wanted to flag. In the market, one should have comfortable sheds, drinking water, and feeding for the animals in market place, and also as well proper stay, resting place, and food and water placement for the cattle owners. This is one area where cattle owners are really suffering, on which this, I request even Hema, if they can incorporate some of these things also in their new model for cattle owners, and how their life can be made more comfortable for this. So thank you very much. This was something I was to share. I'm sorry I could not join through the regular Zoom. And if there are any questions, I'll be very happy to answer those. And I think I'm available for audit as and when you require. Thank you very much. Hello? Yes, so thank you, sir. Thank you, sir, for these insights. Yes, sir. So we are running short of time, and I would like to sensitize the audience that the questions raised and the remaining unanswered will be documented and mailed to you via email or WhatsApp. So to summarize sir's session, sir provided an insight on the opportunities and the problems that needs to be sorted out for goat livestock value chain. At 60% to 70% income, goat farms 60 to 70% of the income for a goat farmer, vis-a-vis or in comparison to 20 to 30% income in case of a dairy farmer. So this is how important goat-based livelihood is for a goat farmer, and how as an opportunity the market scenario is changing, like the digital platform of Pashu Bazaar, and how we can add 3D visualization to such platform, which may be a way ahead. Also, the importance of traceability, which the customer is now preferring, that where this animal is coming from, who are the rearers, what is the geography. These are also things which are gaining importance and would be a kind of point of differentiation in the market. Also, a major problem that is faced is the transportation for the goat rearers. So while transporting animals, they face very many hassles, and there is no clear legal framework which is in accordance to the profitability of the farmer. So on a policy front, we need to advocate these problems and provide solutions for that. So thank you, sir, and thank you for your insights. Thank you. Welcome. So since we are running short of time, I would we will not be able to take the remaining questions, but rest assured we would be following up and providing the solution via WhatsApp or mail. So thank you all for your participation. Hope the session was stimulating and will promote action towards formalization of livestock trade with remunerative market for goat farmers. Please stay tuned for our series of webinar. Coming up next week is webinar on importance of Pashu Sakhi in last mile delivery of livestock business services, experiences in COVID-induced stress management, which is scheduled on Friday, 12th of June, 4 p.m. to 5:30 p.m. We hope to see you again. Once again, International Institute of Goat Management conveys its gratitude towards the panelists and participants for their contribution in taking forward
formalize livestock trade as a new normal in times to come. Thank you all. Hope you had a stimulating session. Thank you. Thank you.